another day that God has given us. और ये और एक दिन है जो प्रभु ने हमें दिया है, And we will rejoice and be glad in it. और यहाँ पे हम आनंद मनाएंगे। Amen. Amen. This is another day that the Lord has made. ये दूसरा दिन है जो प्रभु ने हमें दिया है। We will rejoice and be glad in it. हम खुशी मनाएंगे और आनंद The Bible मनाएंगे। says from the rising of the sun परमेश्वर का वचन कहता है, सूर्य निकलने to से the setting down, ताकि वो डूब जाए। the name of the Lord is to be praised. परमेश्वर के नाम को हम Hallelujah. 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 Shakamayalamayande. Father God, we come before your holy throne this morning. Lord, we are here to praise
forevermore. Hallelujah. Oh, my Redeemer lives. My Redeemer lives. Oh, my Redeemer. उद्धारकर्ता जीवित है. उद्धारकर्ता जीवित है. उद्धारकर्ता जीवित है. Yes. उद्धारकर्ता जीवित है. उद्धारकर्ता जीवित है. Yes. उद्धारकर्ता उद्धारकर्ता जीवित है. Yes. उद्धारकर्ता जीवित है. उद्धारकर्ता जीवित है. उद्धारकर्ता जीवित है. Yes. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let us give a big hand clap to Jesus. Oh, He is worthy. Hallelujah. Shalamayande. Horimakande. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus, we praise Your holy name. We praise You, Lord. Thank you so much, Pastor Shavas. धन्यवाद पास्टर सवास. You led very well. आपने अच्छी तरीके से अगुवाई किया. There are many first timers here actually. यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो जिनका पहली बार है. Brother Santosh mentioned yesterday it was his first time in such a big gathering. और कल ब्रदर संतोष ने भी बोला था कि उनका भी पहली बार था ऐसे बड़ी सभा में अनुवाद करना. He did it so well, and I made it a point after the service to say, "You did so well, brother." So how are you, church, today? आज के दिन कलीसिया आप कैसे हैं? Amen. Thank God for all the wonderful messages we have had, और परमेश्वर को धन्यवाद कि हम लोगों ने बहुत अद्भुत संदेशों को सुना. and the anointed praise and worship. और हमारे पास अभिषिक्त स्तुति आराधना दल है. I think we are not the same when we came on Thursday. और मैं विश्वास करता हूँ कि जो गुरुवार के दिन जैसे हम आए थे वैसे ही नहीं है अभी. And by tomorrow, और कल तक. you can expect the unexpected. और आप जो है वो जो आशा नहीं किया है उस चीज को आशा कर सकते हैं. It is my privilege to be able to speak among leaders, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं अगुवाओं के बीच में बोल पा रहा हूँ. and I pray that whatever God has put in my heart this morning और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भी परमेश्वर ने मेरे आज की सुबह मेरे हृदय में डाला है will speak to each one of our hearts और हम में हर एक के हृदय में उस चीज को बोलेंगे and will guide us in the days to come. और आने वाले दिनों में वही चीज हमें अगुवाई करेगी. Apostle is not here, but it is a privilege to also be during a time when he is completing 50 years in his spiritual journey. और अपोस्तल आज के दिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो है ये अपोस्तल का जो है आत्मिकी जो जन्मदिन है 50वां आत्मिकी जन्मदिन वो पूरा कर रहे हैं. 50 years is not a short time. 50 वर्ष जो है एक छोटा समय नहीं है. When God touched me in the year 1987, और 1987 में जब परमेश्वर ने मुझे छुआ, I used to look at men of God. मैं परमेश्वर के दासों को देखा करता था. Whenever they spoke of having journeyed 5 years, 10 years. और जब वो बात करते थे वो लोग 5 साल का 10 साल का यात्राओं के बारे में बात करते थे. And I used to look at the calendar, और मैं कैलेंडर को देखा करता था whether I will be able to complete 1 year. शायद मैं 1 साल भी पूरा कर पाऊंगा या नहीं. As a young boy, I was so doubtful that I will be able to last. एक जवान लड़के के रूप में मैं बहुत ही शंका से भरा हुआ था कि मैं टिक पाऊंगा या नहीं. But God has been faithful. लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य है. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो. Today I am speaking on a subject which maybe we are not expecting to be taught in such a meeting. और मैं आज उस विषय में बोलना चाहता हूँ. शायद हम लोग ने ऐसी सभाओं में वो विषय में बोलने के लिए किसी ने आशा नहीं किया होगा वो विषय में मैं बोलना चाहता हूँ. But I feel deeply in my heart that this is something which we all need to pay close attention to. लेकिन मेरे हृदय में मुझे ये लगता है कि हमें इस चीज में जो है थोड़ा गहराई में जाके हमें ध्यान देना चाहिए. And I will be speaking on the personal life of the leader. मैं अगुवाओं का व्यक्तिगत जीवन के बारे में बोलना चाहता हूँ. If you could turn with me to the letter of Paul to Timothy, अगर the हम first लोग letter. अगर पहला तिमोथियुस का किताब में चले हम लोग जो पौलुस ने तिमोथी को लिखा था, Chapter 4 and verses 13 to 16. 4 अध्याय का 13 से लेकर 16 तक. I will read in English and my brother will read in Hindi after me. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching.
Do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy when the council of elders laid their hands on you. Practice these things, immerse yourself in them, so that all may see your progress. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by doing so, you will save both yourself and your hearers. जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लौलीन रह। उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत न रह। उन बातों को सोचता रह और इन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रह, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। Short prayer. छोटा प्रार्थना करेंगे। Father, we thank you for this privilege that you have given us, Lord, that we're able to gather as your servants, as your saints, oh God, in this place. And Lord, we give you glory and honor for all you've done in our lives, oh God. You've brought us out of a life of sin, and you have given us, oh Lord, a calling. And because of that calling, we are here. Lord, we are serving in different parts of this country. We are serving in different capacities. And Lord, today we are gathered here to hear from you. So, Father, I pray that by your Holy Spirit, you will anoint, oh God, whatever I have to say, so that, Lord, we are able to get something from your word today, Lord. And I pray that your Spirit will work in such a mighty way that he will change us, oh Lord, so that we will not remain the same, Father, but we will be more devoted and dedicated, Lord, towards looking at our personal lives in our relationship with you. We bless you. We thank you for this time. In Jesus' name we pray. Amen. I remember a story of one person. मैं एक व्यक्ति का कहानी को मैं याद करता हूँ। And this person is a very important person in the society. और समाज में वो व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था। And very well dressed, very well groomed. और वो अच्छे से कपड़ा पहनता था, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से रखता था। And he sported a very well manicured mustache and beard. और अच्छे से उसका दाढ़ी मूंछ अच्छी तरीके से बना के रखता था वो। But he was a very charismatic and gifted leader in his own sphere. और वो अपने ही क्षेत्र में जो बहुत वरदानों से भरा हुआ था वो। So being such a charismatic leader, his followers would always say yes to whatever he said. और जो है वो क्योंकि वरदान से भरा हुआ था, जो कोई भी वो किसी को भी कुछ कहता था सब उसको हाँ बोलते थे। And everyone would hesitate to point out anything that is maybe slightly, wrong with whatever he's saying or doing. और अगर वो कोई गलती बोलता तो गलत बोलता या करता तो लोग जो है उसको गलतियों को दिखाने में वो हिचकिचाते थे उसको। So one day while he was having dinner with his friends and with his colleagues, और एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ संगियों के साथ जो रात का खाना खा रहा था। they had the dinner and then they went to the dessert. और वो खाना खा रहे थे, उसके बाद वो कुछ मीठा खाने लगे उसके बाद। And he was enjoying the dessert. और वो मीठा को वो लोग आनंद ले रहे थे। Finished the dinner and got up and about to leave. और वो लोग रात का खाना खत्म करके वो जाने पर थे। When he got up, लेकिन जब वो उठा, everyone was looking at him. हर कोई उसको देख रहा था। Because he had a big lot of cream on his beard. उसका दाढ़ी में जो क्रीम जो इतना बड़ा सा क्रीम जो लटका हुआ था। And no one could say anything about that cream. और वो क्रीम के बारे में कोई भी कुछ बोल नहीं पाया। They were thinking he might get embarrassed. और लगा कि वो शर्मिंदा हो जाएगा, उन लोगों ने सोचा। Or he might get angry. या वो गुस्सा हो जाएगा। So that leader had to walk out of the dining room, the restaurant, with that cream on his beard. और वो जो है वो क्रीम के साथ ही उसके दाढ़ी में जो लटका हुआ था उसी के साथ को वो निकल गया बाहर। What I'm trying to say is that as leaders, और एक अगुवा के रूप में there are many areas in our lives which we know nothing about. वो बहुत सारे ऐसे चीजें हमारे जीवन में जो हम लोगों को पता ही नहीं होता। Those of us who have studied in the universities or other management courses, you will know of a subject known as Johari's window. और जिन्होंने जो विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है, जैसे कि मैनेजमेंट का जो विषय को लेकर, जहाँ पर बोला कि जोहारीज window. जो जोहारीज विंडो बोला जाता है। And this teaching says that there are 4 areas in every person's life. और ये शिक्षा जो है हर एक व्यक्ति के जीवन में जो है 4 क्षेत्र है बोल के सिखाया जाता है। There's one area which is known to everyone. और एक क्षेत्र है जो सब हर किसी को पता है। Like the name, the face. जैसे कि नाम, चेहरा। There is one area which is known to the person himself,
but is not known to anyone else. और एक ऐसा क्षेत्र है जो व्यक्ति को अपने आप पता होता है लेकिन दूसरों को पता नहीं होता है। There's another area which is known to everyone else but not known to the person. लेकिन और एक ऐसा क्षेत्र होता है जो हर किसी को मालूम होता है लेकिन अपने आप को पता नहीं होता। And other area which is known to no one else. और एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किसी को भी पता नहीं It होता। is an unknown area. वो जो मतलब किसी को पता नहीं होने वाला जो क्षेत्र But है। I'd like to talk to you about the third area मैं तीसरा क्षेत्र के बारे में बोलना चाहता हूँ that is known to others जो दूसरों को पता है but not known to the person himself. लेकिन वो व्यक्ति खुद को पता नहीं है। And in very common language that is known as a blind spot. और जो एक साधारण सब भाषा में कहा जाता है वो ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है And उसको। all of us have blind spots in our lives. और हम में से हर एक के जीवन में जो ब्लाइंड वो स्पॉट है It is that area of our life which we know nothing about. और हमारे जीवन में वो क्षेत्र है जो हमें से हमको कुछ भी पता नहीं होता। But if you ask our friends, our family members, our colleagues, and if we are very close to them, and we ask them, do you think there's anything wrong with my life? अगर आप अपने दोस्तों को, परिवार के सदस्य को, जो उन व्यक्तियों को जो आपके नजदीक है, उनसे पूछोगे कि मेरे जीवन में क्या कुछ गड़बड़ी है बोल के आप पूछोगे तो If you have a very close, a frank relationship, अगर आप किसी दोस्त के साथ बहुत ही नजदीकी संबंध है then I'm sure they will point out to you. और मुझे निश्चिंत है कि वो आपको वो गलतियों को दिखाएंगे। They may tell you that, brother, you are great in everything else, but you have a very short fuse. और वो बोलेंगे कि भाई आपके जीवन में हाँ बहुत सब कुछ जो है ठीक है लेकिन कुछ ऐसा चीज है जहाँ पर गलती है आप। Or they may say that everything else is fine, but you keep on holding some hurt which appears whenever you speak to others. और हाँ आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन जब आप किसी से बात करते हैं तो कुछ ऐसा चोट है, कुछ ऐसा चीज है जो आपने उसको पकड़ के रखा है। Maybe there's something which has happened in your previous life and you hold that inside you. जहाँ शायद आपके जो बीते हुए दिनों में कुछ हुआ जिसके कारण से आपने उस चीज को पकड़ के रखा है And you think that there is nothing wrong with you, और आपको लगता है कि उसमें कुछ गलती नहीं है, गड़बड़ी नहीं है, but others around you are aware of that. लेकिन आपके चारों ओर जो है उनको पता है उसके बारे में। And that is the blind spot that all of us have. और वही एक ब्लाइंड स्पॉट है जो हम में से हर एक के जीवन में है। And brothers and sisters, it is as leaders and as workers in God's field, in God's kingdom, और परमेश्वर के राज्य में एक कामदार के रूप में भाई और बहनों we should try to be the best in everything we can. और जितना सके हम लोग हर एक चीज में जो है सबसे उत्तम देने के लिए कोशिश करना चाहिए। Not perfectionists, as Presbyter Tojam spoke yesterday. जैसे कि जो करगिल दिन प्रेस्बिटर तोजम ने कहा कि जो सिद्धता के उसकी जैसा नहीं But a progress. लेकिन एक जो सुधार, It's not perfection, but a progress towards perfection. ये सिद्धता नहीं है लेकिन सिद्धता की ओर सुधार है। And we are not gathered here to condemn anyone or to condemn ourselves, हम लोग यहाँ पर किसी को दोष लगाने के लिए या अपने आप को दोष लगाने के लिए नहीं है यहाँ पर, but we want to progress towards perfection. लेकिन हम लोग सिद्धता की ओर बढ़ना चाहते हैं। As leaders, we are always on display. Always on display. हम लोग एक अगुवाई के रूप में हर कोई हमें देखता है। There is a saying in English that, you're like a goldfish in a bowl. और एक अंग्रेजी में एक कहावत है कि एक जो बोल में जो है आप सोने की जो सोन मच्छी के समान है। If you go to some houses, you will find a very beautiful bowl or an aquarium where they keep fishes. और अगर आप किसी घर में जाते हैं तो एक्वेरियम में जो है जहाँ पर वो मच्छियों को रखते हैं And in some of those aquariums and bowls, you'll find golden fishes. और Fishes जहाँ which are पर gold colored. जो स्वर्ण कलर का रंग का जो मच्छी रखते हैं जो एक्वेरियम में, And anyone who visits that house, they'll always have a look firstly at that gold, that fish in the bowl. और जो कोई भी उस घर में जाता है तो सबसे पहले वो जो एक्वेरियम में जो स्वर्ण रंग का जो मच्छी है उसी के ऊपर ध्यान देता है। And as leaders, we are like the goldfish in a very transparent bowl. और हम लोग अगुवाई के रूप में उसी स्वर्ण रंग के मच्छी के समान है जो एक एक्वेरियम में रखा है। Everyone is looking at us. हर कोई हमें देखता है। The believers in the church, कलीसिया में विश्वासी लोग, the people with whom you are working in your secular workplace, और जहाँ पर सांसारिक काम जो करते, जहाँ पर आप काम करते उस जगह पर, believers and leaders from other churches, अन्य कलीसियाओं के अगुवे और विश्वासी लोग, we are always on display. हम लोग सब हमेशा प्रदर्शनी में रहते, सब हमें देखते हैं। What we do on the pulpit is not very important. What we do in the pulpit is not very important. जो कुछ हम लोग पुलपित में करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। I'm not saying that, teaching the word, preaching the word is not important. It is actually what we hold close to our hearts.
But actually, it is easy for us to come from Sunday to Sunday and speak the word of God and teach the word of God from the pulpit. और मैं यही नहीं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन को प्रचार करना या सिखाना या महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वो सबसे नज़दीकी चीज़ है जो हम अपने जीवन में रखते हैं। लेकिन हर एक रविवार को कलीसिया में आकर परमेश्वर का वचन को प्रचार करना सिखाना वो आसान बात है। The challenge is to live the message that we preach on Sunday, to live it out from Monday to Saturday at home. लेकिन चुनौती क्या है? जो कुछ हम लोग रविवार को जो पुलपिट से सिखाते हैं, जो सिखाया हुआ चीज है, सोमवार से लेकर शनिवार तक जो सिखाया हुआ चीज है, उसको जीना जो है चुनौतीपूर्ण चीज है। The challenge is to live out the principles we teach on Sunday in the workplace where we go to work from Monday to Saturday. और जो कुछ हम लोग जो है जो सिद्धांतों को पुलपिट से रविवार के दिन सिखाते हैं, उसी चीज को जो है सोमवार से लेकर शनिवार तक जीना एक चुनौतीपूर्ण चीज है। And the challenge is to live out what we are teaching from the pulpit when we go to believers' houses, when we counsel them, when we engage with them, when we talk to them. That is where the challenge lies. और चुनौती ये है कि जो कुछ हम लोग विश्वासी को जो पुलपिट से सिखाते हैं और जब हम लोग विश्वासी के घर में जाते हैं, विश्वासी के साथ मिलते हैं, जब हम लोग सलाह सुझाव देते हैं, उस वक्त चुनौती आता है। So that's why Paul is telling his disciple Timothy, इसीलिए पौलुस जो है अपना चेला तिमोथी को ये चीज सिखा रहा है, keep a close watch on your life. अपने जीवन का ध्यान से चौकसी करो। The word that is used here is, and if you look in the previous verses, you'll find there are many words which are used here. और जैसे कि जो इससे आगे के वचनों में भी हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीजों को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। In verse 13 he says, devote yourself to the public reading of scripture, to exhortation, to teaching. Devote yourself. अपने यहाँ पर बोला कि अपने आप को जो सिखाने में, उपदेश देने में लगाए रखो। In verse 14 he says, do not neglect the gift. और 14 में बोलता है कि उस वरदान को जो है उसका अनदेखा मत करो। In verse 15 he says, practice these things. और 15 में कहता है कि उन सारी चीजों को व्यक्तिगत उसको इस्तेमाल करो। Immerse yourself in them. और उस चीज में लगे रहो। Keep a close watch. अपनी चौकसी करो। Pay attention. ध्यान दो। So therefore, brothers and sisters, it is so important for us to pay attention to our personal lives. इसीलिए भाई और बहनों कि हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। And also to what we teach the congregation. और उसको जब हम लोग लोगों को सिखाते हैं उस समय भी। I may not have time to look at the second part, but we'll definitely be looking at the personal life of the leader. और शायद दूसरे भाग में देखने के लिए समय नहीं होगा, लेकिन हम लोग जरूर व्यक्तिगत या अगुवाओं के व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम लोग देखेंगे। So how do we keep close watch on our personal lives? हम कैसे अपने व्यक्तिगत जीवन में जो है ध्यान से देखें। I'll request if you can just flash only the verses, because otherwise, people, their attention will be on the screen. So how do we really keep watch over our personal lives? हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे ध्यान दें? There are a few things I would like to share with you this morning. आज की सुबह कुछ चीजें जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। And the first thing is this. पहला चीज वो ये है, keep yourselves in the love of God. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। These days we have been dwelling a lot on different parts of the Bible, and we have been looking at a series of teachings in the church where I oversee there in Guwahati. और जैसे कि इन दिनों में जो है हम लोग बाइबल के अलग अलग भागों में हम लोग रहते हैं, बहुत सारी शिक्षाओं को, सिद्धांतों को सीखते हैं। जैसे कि गुवाहाटी में जहाँ पर कलीसिया को देख रहा हूँ, वहाँ पर भी सिखा रहा हूँ। And one of the letters we have seen recently was the letter of Jude. और एक पत्री जो है जो हम लोग देखेंगे जो है वो यहूदा का पत्री है। And in the letter of Jude in chapter 1, there's only one chapter, verse 20 and 21. यहूदा का 20 और 21 पद में the Bible says, build yourself up in the most holy faith, praying in the Holy Spirit, and waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. और यहाँ पर कहता है कि पर अपने हे प्रियो तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए 2021. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। So keep yourselves in the love of God. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें। I believe all of us here, we came to accept the Lord Jesus Christ and we came to be believers
a lot of us from non-believing backgrounds. First of all, it is because the love of God has touched us. और हम में से हर एक लोग हम लोग जो है अविश्वासी पृष्ठभूमि से आए थे, जो हम लोगों ने जो यीशु मसीह को जो विश्वास किया, और उसका कारण ये है कि जब हम लोगों ने परमेश्वर का प्रेम को अनुभव किया, परमेश्वर का प्रेम ने हमने छुआ, उसी कारण से हम लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। When we during our younger days with the Lord, we used to love to sing that song, When I First Fell in Love with Jesus. और वो एक गाना है, जब मैं पहले यीशु के साथ मेरा प्रेम हुआ था, वो एक गाना है, वो मुझे गाना बहुत ही पसंद था। I gave him all my heart. मैंने सारा हृदय उसको दे दिया है। I keep on falling in love with him over and over, over and over, over and over again. और हर बार जो है मैं यीशु के साथ मेरा प्रेम होते रहता It है। is a beautiful song. ये बहुत ही सुंदर गाना है। But falling in love with Jesus sometimes makes it very light for me. और कभी कभी जो यीशु के साथ प्रेम होना, कभी कभी ये मुझे मैं हल्के में ले लेता हूँ, हल्का लगता है मुझे। Then we tend to compare that love of Jesus with the sentimental love that we see in the movies or we listen to in songs with some sort of romanticism associated with it. और कभी कभी हम लोग जो यीशु का प्रेम को जो हम लोग गाने में सुनते हैं, जो भावनात्मक पूर्ण, जो भावना से भरा हुआ गाने, तो उन सारे गीतों के साथ जो वहाँ पर प्रेम का बखान किया जाता है, उसके साथ हम लोग यीशु का प्रेम को तुलना कर देते हैं। But the love of God is much more than that. लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है उससे भी बढ़कर है। While we were dead in our sins, the Bible tells us, while we were dead in our sins, और बाइबल कहती है कि जब हम लोग पाप में ही मरे हुए थे, God saved us. परमेश्वर ने हमें बचाया। When we were not able to respond in any way, और जब हम लोग कोई भी तरीके से हम लोग प्रतिक्रिया ना दे सके, forget about love, we were not able to respond at all, the love of God touched us. और वो पर उसके बारे में भूल जाइए, लेकिन जब हम लोग प्रतिक्रिया ही दे नहीं सकते थे, तो उस समय में जो है परमेश्वर का प्रेम ने जो है हमें छुआ। The love of God awakened something which was dormant, which was dead in all of us. और परमेश्वर का प्रेम ने जो है उस चीज को जगाया जो हमारे अंदर में मरा हुआ था, जो दबा हुआ था। That's why Jude, when he wrote this letter, it's actually a letter about the last days. और जब यहूदा ने इसलिए ये पत्री लिखा, ये पत्री जो है अंत के दिन के बारे में कहता है। He said, in the last days, keep yourselves in the love of God. इसीलिए वो कहता है कि अंत के दिनों में जो है अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। When Paul wrote to the Thessalonian Christians, जब पौलुस ने जो है थिस्सलुनीकी में जो ईसाई थे उनको लिखा, in the second letter and chapter 3 and verse 5, chapter 3 and verse 5. और पहला थिस्सलुनीकी का, दूसरा Thessalonians. थिस्सलुनीकी का 3 अध्याय का 5 पद। He says here, may the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ. यहाँ पर कहती है परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। May the Lord direct your hearts into the love of God. May God direct your hearts to His love. परमेश्वर जो है अपने प्रेम की ओर तुम्हारी मन की अगुवाई करे। At different stages of our lives, हमारे जीवन के अलग अलग चरणों में we need God to direct our hearts once more to the love of Christ. हमें जरूरत पड़ता है कि परमेश्वर हमारे प्रेम को जो है उसकी प्रेम की ओर अगुवाई करे। We remember the message that the Lord gave to the church in Ephesus in the book of Revelation. हम लोग वो प्रकाशित वाक्य की किताब में याद करते हैं, जब प्रभु ने जो है कलीसियाओं को कुछ संदेश दिया था। If you look at Revelation chapter 2 and verses 2 to 4, अगर आप प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय का 2 से लेकर 4 पद तक देखेंगे तो God says here, I know your works, your toil and your patient endurance, and how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. I know you are enduring patiently and bearing up for my name's sake, and you have not grown weary. But I have this against you, that you have abandoned the love you had at first. मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरा धीरज जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को तो देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तू अपने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है।
Brothers and sisters, there are so many good things that was happening in this church in Ephesus. और ये भाई और बहनों, ये इफिसियों का कलीसिया में ऐसा बहुत सारे ऐसे अच्छी चीज हो रहे थे। God says, I know your works. वो परमेश्वर कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा काम, I know your toil. You work hard. हाँ मुझे तुम्हारा परिश्रम पता है, तुम्हारा मेहनत पता है, You are patient. You endure so much. तो तुम धीरज धारते हो, तुमने बहुत चीजों को सहा है, And you have that wisdom and the spirit of discernment in you. और तुम्हारे पास वो बुद्धि है, वो पहचानने का आत्मा है, You always bear up for my name's sake. और तुमने मेरे नाम के खातिर बहुत चीजों को सहा है, And you have not grown weary in serving me. और मुझे सेवा करते हुए तुम नहीं थके हो। But still, I have this one thing against you. लेकिन तुम्हारे विरोध में मेरे पास एक चीज है, Where is the love you had at first? जो तुम्हारा पहला प्रेम था, वो पहला प्रेम कहाँ है? I remember when we were little children, we used to sing a song. और जब मैं याद करता हूँ, जब हम लोग छोटे बच्चे थे, एक गाना को गाते थे, This song was written in the year around 1860. और ये 1960 के दशक में लिखा हुआ गाना था। The song says, and all of us know this song, Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak, but he is strong. और यहाँ पर कहती है कि यीशु मुझे प्रेम करता है, मुझे पता है, क्योंकि बाइबल इस तरह से कहती है, और जितने भी छोटे यीशु के हैं, चाहे वो कमजोर हो, लेकिन वो बलवंत है। And many times we think, oh, this is a Sunday school song. बहुत बार हम लोग सोचते हैं कि ये संडे स्कूल का गाना है, We have grown beyond that. हम लोग उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। But actually, if you read the letter of all the letters of John that he had written, all the 3 letters, अगर आप यूहन्ना के पत्रियों को देखेंगे तीनों ही पत्रियों को जो उसने लिखा है, and the Apostle John, who is known as the Apostle of Love, always talked about the love of God. और प्रेरित यूहन्ना जो है एक प्रेम का प्रेरित बोल के जाना जाता है, क्योंकि हमेशा वो प्रेम के बारे में लिखता है। He says, little children, there's no greater joy than this, than to hear that you are walking in love. और उसने लिखा है कि छोटे बच्चों, ये इससे आनंद की बात नहीं है कि ये सुनना कि तुम जो है प्रेम में चल रहे हो। And by little children, he doesn't mean 5-year-old, 7-year-old. He means all of us who maybe have just started their walk with God. और छोटे बच्चों का मतलब ये नहीं है कि 5 या 7 साल का बच्चा, लेकिन हमें से हर एक को दर्शाता है, या उनको चाहे अभी अभी जिसने परमेश्वर के साथ चलना शुरू किया Or है, who are young in the faith, or who are young in the faith. जो विश्वास में छोटे बच्चे हैं। He says there's no greater joy than to hear that you're walking in love. और इस चीजों को सुनना कि तुम प्रेम में चल रहे हो, उससे बड़ा आनंद कोई भी नहीं है। So keep yourselves in the love of God. अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। Be always touched when you hear songs about the love of God. और हम वो चीज को हमेशा छूता है जब हम लोग परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुनते हैं। Yes, God loves me. हाँ, परमेश्वर हमसे प्यार करता है, In spite of all my frailties, और मेरे सारे दुर्बलताओं के बावजूद भी, in spite of all the sins that I have committed against Him, उन सारे पापों के बावजूद जो मैंने उसके विरोध में किया है, in spite of denying Him so many times, बहुत बार उसको इनकार करने के बावजूद, and yet He still loves me. फिर भी वो मुझे प्यार करता है। And Jude in his letter gives us certain, he gives us an insight on how we can keep ourselves in this love of God. और यहूदा जो है हमें यहाँ पर दिखा रहा है कि हम कैसे अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रख सकते हैं। In the portion that we just read, जो भाग में जब अभी हम लोग ने पढ़ा, it says there, building yourselves up in your most holy faith. We need to build ourselves up. अपने आप को जो है वो पवित्र विश्वास में बरकरार, यानी कि बनाते जाना या बनाए रखना। We need to grow in the knowledge of God. हम परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते चले जाना चाहिए। We need to love the Bible, the Word of God. हमें बाइबल को, परमेश्वर का वचन को प्यार करना चाहिए। I don't mean this as a sense of duty, और मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी के रूप में ही नहीं बता रहा हूँ, but because you love the Word of God. क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को प्यार करते The हैं। Bible is God's love letter to us. बाइबल जो है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए एक प्रेम पत्र है। And a couple who is in love with one another, और एक जोड़ी जो एक दूसरे को प्रेम करते हैं, they'll keep on reading and rereading the same letter. और वो जो एक दूसरे का लिखा हुआ पत्र जो है बार बार हमेशा पढ़ते हैं।
because it speaks of the love that they have for one another. क्योंकि वो उस प्रेम के बारे में बताता है जो प्रेम उन दोनों एक दूसरे के लिए है। So we build ourselves up in our most holy faith. इसलिए हम लोग को जो अपने जो पवित्र विश्वास में बढ़ते जाना चाहिए। Then Jude says, praying in the Holy Spirit. और यहूदा कहती है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। Prayer is important. प्रार्थना महत्वपूर्ण है। And praying in the Holy Spirit is more important. और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना और ज्यादा महत्वपूर्ण है। Thank God for the baptism of the Holy Spirit. परमेश्वर को धन्यवाद पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए। Thank God that we are charismatics. और धन्यवाद कि हम लोग कैरिस्मेटिक हैं। We love our brothers and sisters from all segments of the church, but thank God we are charismatics. और हम लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर जो कलीसिया के जो भाई और बहन आए हैं, लेकिन हम धन्यवाद परमेश्वर को कि हम And we लोग can कैरिस्मेटिक speak in हैं। tongues, we can pray in tongues. हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, अन्य भाषा में बोल सकते हैं। Myself and my wife, when we go down to Guwahati every week for ministry, और पास्टर के पत्नी जब हर एक बार जब गुवाहाटी में सेवकाई के लिए जाते हैं, so many times when we sit in the car, we are only singing in tongues, praying in tongues. बहुत बार जब हम लोग गाड़ी में बैठते हैं तो अन्य भाषा में गाते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। It's not that I don't want to speak to her, she doesn't want to speak to me. ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बात नहीं करता, वो मुझसे बात नहीं करती है। But sometimes, God just lead us to pray in tongues. लेकिन कभी कभी परमेश्वर जो है हमें जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करते हैं। If any of you do not have this gift, I pray that you will thirst for this gift. It is a wonderful gift. और अगर आपके पास ये वरदान नहीं है तो आप इसके लिए ये वरदान के लिए प्यासा होना होगा। ताकि मैं चाहता हूँ कि आपके पास भी ये वरदान हो। And thirdly, Jude says, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. और तीसरा जो है यहूदा यहाँ पर कहता है कि उस अनंत जीवन के लिए हमें इंतजार करना चाहिए, दया के लिए, परमेश्वर की दया के लिए हमें इंतजार करना चाहिए जो अनंत जीवन की ओर लिए हमें चलता है। Waiting is important. इंतजार करना महत्वपूर्ण है। And more so when we are anticipating the return of our Lord Jesus Christ. और उसके लिए जब हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए जब हम लोग आशा कर रहे, इंतजार कर रहे हैं। A lot of us know our Bible very well. हमें से हर एक को अपना बाइबल बहुत अच्छी तरीके से पता है। And we know the promises of the second coming. और हमें दूसरे आगमन का प्रतिज्ञा भी पता है। And sometimes we can feel very complacent. और कभी-कभी हम लोग ऐसे मतलब ढीला पड़ जाते हैं। The work of the preaching of the gospel has not really gone to all the corners of the earth. और जो परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना जो पृथ्वी के चारों छोर तक अभी तक नहीं पहुंचा है। And therefore, Jesus is not coming today or tomorrow. इसीलिए यीशु आज या कल नहीं आएंगे। But brothers and sisters, the Bible says, लेकिन भाई और बहनों जो बाइबल कहती है, if you are anticipating the return of the Lord Jesus, अगर आपने प्रभु को आगमन को जो इंतजार करके बैठा, आशा करके बैठे हो, the Apostle John says, he who has this hope in him purifies himself. और यूहन्ना ने कहा है कि जिसके पास ये आशा है वो अपने आप को शुद्ध करता है। If you have the hope that the Lord Jesus is going to return any moment, अगर आपके पास वो आशा है कि यीशु मसीह कोई भी क्षण वापस आ सकते हैं, you will be purified. आप अपने आप को शुद्ध करेंगे। Not because you are scared that he might throw you to hell, वो डर से नहीं कि कहीं वो आपको नरक में ना फेंक दे, but because the one you love is coming and you would like to meet him. क्योंकि जिससे आप प्रेम करते हैं वो वापस आ रहे हैं, इसीलिए आप उनसे मिलना चाहते हो। इसीलिए So by doing these things, we keep ourselves in the love of God. और ये चीज करने के द्वारा हम अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रख सकते हैं। Secondly, I would like to, Paul has mentioned to his disciple Timothy here. और जो कुछ भी यहाँ पर पौलुस ने अपने चेला जो तिमोथी को लिखा है, बताया है about how to pay attention to your personal life. कि अपने व्यक्तिगत जीवन में कैसे ध्यान देना है। The second thing is we need to grow in godliness. और दूसरा चीज वो है कि हम लोग को भक्ति में जो है बढ़ते चले जाना है। We need to grow in godliness. हम लोग को भक्ति में बढ़ते चले जाना है। To put it very simply, we need to grow in seeing the fruits of the Holy Spirit in our lives. और अगर हम लोग साधारण शब्द में कहें तो हमारे जीवन में जो है पवित्र आत्मा का फल जो है दिखना जरूरी है। I remember many years back when late Apostle Haridas came and taught many truths here in this church. और मैं याद करता हूँ कि बीते हुए दिनों में जो स्वर्गीय प्रेरित हरिदास आके हमें बहुत सारी चीजों को सिखाया था, सच्चाई सत्य को। A lot of us who were very young at that time, और हमें से बहुत सारे लोग जवान थे उस समय में।
didn't really feel so enthusiastic with the teaching और शिक्षा से इतना जोश से इतना मन नहीं लगता, जोश से नहीं भरे हुए थे हम लोग, because he was teaching about the fruit of the Holy Spirit. क्योंकि वो पवित्र आत्मा के फल के बारे में सिखा रहे थे। He was teaching about love, joy, peace, gentleness. वो प्रेम, आनंद, धीरज, भद्रता के बारे में सिखा रहे थे। He thought he will teach more about, deliverance, more about, miracles and all those subjects. और हमें लगा कि वो जो है छुटकारे के विषय में, चमत्कार के विषय में और अन्य विषय में वो सिखाएंगे। But if you have to pay attention to our personal lives, अगर हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान दे तो we need to grow in love. हमें प्रेम में बढ़ना चाहिए, We need to grow in patience. हमें धीरज में बढ़ना चाहिए, We need to grow in joy. हमें आनंद में बढ़ना We चाहिए, need to grow in gentleness. हमें भद्रता में बढ़ना चाहिए, We need to grow in self-control. जो आत्मसमय में बढ़ना चाहिए। Gifts will not last in the next kingdom, और आने वाले राज्य में जो है वो वरदान जो है हमेशा बने नहीं रहेंगे, but fruit will last in the next kingdom also. लेकिन जो दूसरा राज्य उसमें जो है फल जो है हमेशा बना रहेगा। And as leaders, when we interact with believers, और एक अगुवे के रूप में जब हम लोग विश्वासी के साथ वाद विवाद प्रतिक्रिया करते हैं, yes, we want that when they pray, people will be healed, the dead will be raised, and so many miracles to happen. और हाँ, हम लोग चाहते हैं कि जब हम लोग प्रार्थना करें कि बीमारी चंगाए हो, मरे हुए फिर से जी उठे, बहुत सारे चमत्कार हो, हम वो चाहते हैं। But if we are honest with ourselves, लेकिन अगर हम अपने आप में खुद में ईमानदार है तो we would like to see that where husband and wife are not talking to one another, that they start talking to one another and loving one another. We would like to see where husband and wife are not talking to one another, that they start to talk to one another and love one another. और हम लोग वो चीज को देखना चाहते हैं जो पति पत्नी जो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे, बिना बात किए बैठे, लेकिन वो फिर से दोबारा एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फिर से प्रेम कर रहे हैं, वो देखना चाहते हैं। We would like to see that someone who does not have any patience at all, who's usually very, very angry at very small instances, that this person has grown in patience. और हम वो चीज को देखना चाहते हैं कि उस व्यक्ति के पास जो जिसके पास कुछ धीरज बोलने वाला नाम ही नहीं है, छोटे छोटे बातों में वो गुस्सा हो जाता है, लेकिन उस व्यक्ति में जो है धीरज धरते हुए धीरज को हम देखना चाहते हैं उस व्यक्ति के We जीवन would में। like to see a father who always beats up his children, that he grows in gentleness and he takes care of his children. He is gentle towards his wife. He is gentle towards his children. और हम उस चीज को देखना चाहते हैं कि एक पिता जो हमेशा अपने बच्चों को मारता है, लेकिन वो जो अपने बच्चों को प्यार करते हुए, अपने बच्चों को वो प्यार से संभालते हुए, देखभाल करते हुए, उस चीज को देखना चाहते हैं। The Apostle Paul, in the first letter to the Corinthian Christians, chapter 9 and verse 27, he says, I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. और यहाँ पर पौलुस जो है दूसरों को पहला कोरिन्थियों का 9:27 में कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और बस में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। Can you imagine? Paul says, the Apostle Paul, he says, after preaching to others, after teaching others, after a full life of ministry, I'm afraid I might be disqualified. So therefore, I discipline my own body. इसलिए यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि दूसरों को सिखाने के बाद, दूसरों को प्रचार करने के बाद, सेवकाई करने के बाद कहीं मैं अपने आप ही अयोग्य ना ठहरूं, इसी कारण से जो है मैं अपने आप को जो है अनुशासित करता हूँ बोल के प्रेरित पौलुस कह रहा है। The book of Hebrews in chapter 12 and verses 1 and 2 says, इब्रानियों का किताब, it talks about running the race. यहाँ पर इब्रानियों का किताब 12 का 1 और 2 में यहाँ पर दौड़ को दौड़ने के विषय में कहा गया And the है। writer says here that laying aside every weight and the sin which clings so closely, let us run with endurance the race that is set before us. इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है धीरज से दौड़े। It's, we are clear about the sin. हम पाप के बारे में हम लोग स्पष्ट है, We want to stay far away from sin. हम लोग पाप से दूर रहना चाहते हैं, That we are very clear. उसके बारे में हम लोग स्पष्ट है। But the Bible says here, there is also the weight. लेकिन बाइबल यहाँ कहती कि वहां पर एक जो वजन है, There is the weight that hinders us from running the race.
कुछ ऐसा भारी चीज है जो हमें दौड़ने में जो है हमें उलझाती है, रुकावट लाती है। It is not a sin, ये पाप नहीं है, but it is a weight. लेकिन वो एक बोझ है। And when we run the race, we cannot afford to have a weight with us. और जब हम लोग दौड़ को दौड़ते हैं उस समय में हम लोग जो है वो बोझ को उठा नहीं सकते। You're saying, I have not murdered, I have not committed adultery, I have not sinned. और आप कह सकते हैं कि मैंने हत्या नहीं किया है, मैंने व्यभिचार नहीं किया है, मैंने पाप नहीं किया है। But there are small things in us that hinder us from running the race and reaching towards the mark. और कुछ ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जो हमें दौड़ने के लिए रुकावट लाती है और हमें जो लक्ष्य तक पहुंचने में हमें रोक देती है। Are you yielding to temptations that you resisted before? Are you yielding to temptations that you resisted before? क्या आप उस परीक्षा को जिसके पहले आपने विरोध किया था, जिसका सामना विरोध किया था, उसमें फिर आप समर्पित, फिर उसमें गिर रहे हैं आप लोग? Sometimes I used to look back at my personal life and I think it is the same with you. और कभी-कभी मैं पीछे मुड़कर अपने व्यक्तिगत जीवन को देखा करता हूँ, शायद आप लोग भी उसी तरह से करते हैं। Few days back I was just looking at what I wrote in my diary many years back. और बहुत साल पहले मैंने जो कुछ अपने डायरी में लिखा था उसको देख रहा था। In that diary I said, Lord, deliver me from devoting too much time in playing, chill. और मैंने उस समय में प्रार्थना की कि प्रभु मुझे जो है ज्यादा खेलने में जो है मुझे उस चीज से छुटकारा दीजिए। And when you think, what is wrong with playing? और खेलने में क्या गलत है? There's nothing wrong. इसमें कुछ गलत नहीं It's है, not a sin. ये पाप नहीं है। But at that point of time in my life, उस समय में, मेरे जीवन के उस समय में, as a young man, एक जवान पुरुष व्यक्ति के I was so involved in games मैं गेम्स खेलने में बहुत ही गेम खेलता था that I could not have time for Bible study, personal prayer life. और बाइबल अध्ययन करने में, व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए मेरे पास समय नहीं होता था। For someone it might be, nowadays we have our mobile phones. अभी हमारे पास मोबाइल फोन है And we spend a lot of time on our phones. हम लोग बहुत ज्यादा समय जो है फोन में बिताते हैं। It's a very useful thing that God has given us. I think we can use it for God's glory. और ये बहुत ही उपयोगी चीज है जो परमेश्वर ने हमने दिया है, हम लोग इसको परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। But there comes a time when you feel inside, and I think it's the voice of the Holy Spirit, you say that, I think I'm spending too much time on my phone. और कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद वो पवित्र आत्मा का आवाज होगा कि हम लोग ज्यादा समय जो है अपने फोन पे बिता रहे हैं। It's not a sin, ये पाप नहीं है, but it's a weight. लेकिन वो एक बोझ है। It's a weight that hinders us from running. लेकिन वो ये बोझ है जो हमें दौड़ने के लिए रुकावट लाती है। Have you grown in patience? क्या आप धीरज में बढ़े हुए हो, Especially towards new believers. विशेष करके जो नए विश्वासी उनकी ओर? Many times we feel that this person does not really know what it means to be a Christian. और कभी-कभी हम लोग को लगता है कि शायद ये व्यक्ति को पता नहीं होगा कि ईसाई होने का मतलब क्या है, इस व्यक्ति को पता नहीं है। We forget that it has taken us 10 years to learn that thing. और हम लोग वो भूल जाते हैं कि वो चीज को सीखने के लिए हमें 10 साल लगा। And this person is just completed maybe not even 10 months. और शायद ये व्यक्ति ने अभी शायद 10 महीना भी पूरा नहीं किया होगा। How do we grow in godliness? हम कैसे भक्ति में बढ़ते चले जाएं? By being more patient. हम लोग जो है धीरज धरते हुए। For those of us who are married, हमें से जो विवाहित है, married leaders, do you love your wife more today than when you first met her? जो शादीशुदा लोग हैं, क्या शादीशुदा अगुए लोग, जो आप लोग क्या अपने पत्नी को जब पहले आपने उनसे प्यार किया था उसी तरह से प्यार करते हैं या उससे ज्यादा अपने पत्नी को प्यार करते हैं? So one couple had completed some years, quite a number of years in their marriage life. और एक शादीशुदा जोड़ी था जिन्होंने कुछ साल हुआ था उन लोगों का शादी का। And the wife said to the husband, you never tell me that you love me. और पत्नी ने पति से कहा कि आप कभी भी नहीं कहते हो कि आप मुझसे प्यार करते हो। The husband said, I told you I love you when we got married. और पति ने कहा कि मैंने कहा था कि मैं आपसे प्यार करता जब हम लोग शादी कर रहे थे। And if I change my mind, I would tell you. अगर मैंने अपना मन को परिवर्तन किया है तो मैं आपको कहूंगा। Paul says to the Ephesian Christians, पौलुस जो है इफिसियों का ईसाइयों को कहता है, husband, love your wives.
पतियों अपने पत्नी से प्रेम करो as Christ loved the church जैसा मसीह कलीसिया से प्रेम करता है and gave himself up for her. और उसके लिए जो अपने आप को दे दिया। I'm sure Paul is not saying that you'll have to die for your wife. और हाँ मुझे पता है कि पौलुस ये नहीं बोल रहा है कि हमें अपनी पत्नी के लिए मरना है, No. नहीं। What he's saying is, उसका बोलने का मतलब ये है when both of you are in front of the TV, जब आप दोनों जब टीवी के आगे होते हो, when you want to watch your cricket जब आप अपना क्रिकेट को देखना चाहते हो, and your wife wants to watch a serial, जब आपके पत्नी जो है सीरियल को देखना चाहती है, are you willing to give up that remote? क्या आप वो रिमोट देने के लिए तैयार हो? That is losing your life for your wife. वही है जो अपना जीवन को जो है अपने पत्नी के लिए खोना। If you felt that you have spent a lot of time shopping अगर आपको लगता है कि ज्यादा समय आपने जो है शॉपिंग करने में बिताया है and your wife tells you, no, there's one more shop there, और आपका पत्नी कहते हैं कि और एक दुकान बाकी है, are you willing to lose your life? क्या अपना जीवन को खोने के लिए आप तैयार हो? It's not about dying physically. वो शारीरिक रूप में मरने के विषय में नहीं है, It's about dying for what you really desire. वो उस चीज के लिए मरना है जो सच में आप चाहते हो। And then we grow in godliness in the area of finance. और हम लोग भक्ति में इस तरह से बढ़ते हैं, यानी कि रुपये पैसे के क्षेत्र में भी हम लोग भक्ति में बढ़ते हैं, Because we are all leaders here, क्योंकि हम सब अगुए हैं यहाँ पर। at some point of time we will handle church finances. और कुछ समय हम लोग कलीसिया के रुपये पैसों की भी हम लोग देखभाल करेंगे। And even if we don't handle church finance, it is our attitude to money that determines how we grow in godliness. और जब हम कलीसिया के रुपये पैसे को देखभाल करते हैं कि वो उस चीज़ को दिखाता है कि पैसे की और हमारा रवैया या हमारा चरित्र कैसा है, उस चीज़ को दिखाता है। You know, we need money. We need money. हमें पैसे की ज़रूरत है, Money is good. पैसा अच्छा है, It helps in ministry. वो सेवकाई में मदद करती है, It helps in spreading the word of God. वो परमेश्वर के वचन को फैलाने में मदद करती है। It is a good servant, ये अच्छा सेवक है, but it is a bad master. लेकिन ये बहुत ही खराब मालिक है। If you are mastered by money, अगर आपका पैसा जो है मालिक है, it will bring you a lot of pain. वो आपको बहुत सारा दर्द को लाएगा आपके जीवन में। And again, Paul took so much care to guide his disciple Timothy in this area. इसीलिए इस क्षेत्र में जो है प्रेरित पौलुस अपने चेला को अगुवाई करने में बहुत सारी चीजों को यहाँ प्रयत्न किया है पौलुस ने। If we go to 1 Timothy chapter 6 and verse 6 to 10, अगर आप पहला तीमुथियुस का 6 अध्याय का 6 से लेकर 10वें पद तक पढ़ते हैं, it says here, but godliness with contentment is great gain. यहाँ पर कहती है पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। For we brought nothing into this world and we cannot take anything out of the world. क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। If we have food and clothing, with these we will be content. और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। But those who desire to be rich fall into temptation, पर जो धनी होना चाहते हैं वो ऐसी परीक्षा में पड़ते हैं, into a snare, into many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. और फंदे और बहुत तरह बेहद और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। For the love of money is the root of all kinds of evils. क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है। It is through this craving that some have wandered away from the faith. जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने अपने विश्वास से भटक कर And pierced themselves with many pangs. और अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। I don't have to explain anything here, brothers and sisters. और भाई और बहनों, मुझे यहाँ पर कुछ भी चीजों को बताने की जरूरत नहीं है। It is so clear. यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट है। And Paul devoted so much attention. और यहाँ पर पौलुस ने जो है बहुत सारा ध्यान दिया है यहाँ He पर। said, do not let money be a master over you. और वो कह रहा है कि पैसे को अपना मालिक बनने मत दो, Because you can fall into a snare. क्योंकि तुम जो है फंदे में पड़ सकते हो। It is the root of all kinds of evils. ये बहुत सारे बुराइयों का जड़ है। It will even make you wander away from the faith और ये आपको जो आपके विश्वास से भड़का देगा and bring a lot of pain in your life. और आपके जीवन में बहुत सारे वो दर्द को लाएगा। In the same letter, in same chapter and verse 17, he says,
Tell the rich not to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. और इसी अध्याय का 17वें पद में यहाँ पर कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। As leaders, many times we feel there is a lack of finance, and if there was finance, we could be able to spread the work of God more, especially in difficult places. और हमें एक अगुआ होने का नाते हम लोग को ये लगता है कि कभी हम लोग को रुपये पैसों की कमी है, अगर हमारे पास बहुत सारा रुपये पैसा होता तो हम लोग परमेश्वर के कामों को फैला सकते थे जहाँ पर परमेश्वर की जरूरत है। So it can start with a very good motive. हाँ, जो शुरू में जो है अच्छे सोच से शुरू होता है। Many years back when I first came to the faith, और बहुत साल पहले जब मैं विश्वास में आया, I got a book, and that book is still there in my library. The name of the book is The Man Who Could Do No Wrong, and the writer's name is Charles Blair. और मेरे पास एक किताब था, वो किताब अभी भी मेरे पास है कि वो किताब का नाम है कि वो व्यक्ति जो कुछ गलत नहीं कर सकता, and his name is Charles Blair. और वो किताब लेखक का नाम है चार्ल्स ब्लेयर। He's a very famous pastor. वो बहुत ही प्रख्यात पास्टर है। And he built a very huge church. उसने बहुत बड़ा कलीसिया का निर्माण किया। He did a lot of work overseas. और उसने विदेशों में भी बहुत सारे कामों को किया। And he felt that God gave him a vision to build a large hospital. और उसको लगा कि परमेश्वर ने उसको अगुवाई की है कि एक बड़ा सा अस्पताल को बनाने के लिए, A retirement home for seniors. जो बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट होम बनाने के लिए। And so he made that call to the believers. और उसने वो विश्वासियों को चीज को बताया To give towards this project. और ये प्रोजेक्ट में सहायता करने के लिए, देने के लिए। And he also made a proposal. He made a project that if you give towards this project, and when this project starts earning, then we will return whatever you have given, and that also with interest. और उन्होंने कहा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट को रुपये पैसे से सहायता करते हो और वो ये प्रोजेक्ट जो है कमाना शुरू करते हैं, तो आपका रुपया पैसा जो आपने सहायता की है, जो सूद सहित आपको फिर से आपका पैसा लौटा दिया जाएगा। And although the believers started to give and give faithfully, और सभी विश्वासियों के पूर्ण तरीके से देना शुरू किया। the borrowing became too much. और उधार जो है बढ़ते गया। It came under the scrutiny of the authorities. और वो अधिकारों के नजर में भी आया वो। And he was caught and arrested for fraud. और वो धोखाधड़ी में उसको पकड़ा गया। And because he was a minister, and this happened in the US. और क्योंकि वो सेवक था, वो जो यूएस में हुआ ये, And therefore they adopted a very soft stance. और उन लोगों ने बहुत ही कोमल तरीके से उन लोगों को जो किया, Didn't put him बर्ताव in किया। jail, उन लोग जेल में नहीं डाला, but put him on 5 years probation. लेकिन उन लोगों को जो है 5 साल तक निगरानी में रखा। So 5 years he had to report to the authorities what he was doing. और 5 साल तक अधिकारियों को जो कुछ वो कर रहा है उसका जो उसको बताना पड़ा, रिपोर्ट देना पड़ा। And during that 5 years he had to do so many things to return back to the believers what he had taken from them. और वो 5 साल तक जो कुछ उसने विश्वासियों से लिया था, वो सब पैसा उसको लौटाना पड़ा। He himself wrote this book, उसने- The Man Who Could Do No Wrong. और उसने अपने आप ही ये किताब को लिखा कि वो व्यक्ति जो कुछ गलत नहीं कर सकता। And in that book he wrote, he said, I feel that this was a vision given to me from God. उसने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे लगा कि ये दर्शन जो है परमेश्वर ने मुझे दिया है। But then he says that catching the vision is only half the battle. और उसने कहा है कि दर्शन को पकड़ना वो लड़ाई का सिर्फ आधे तक ही पहुंचना है। The second half is discovering the means to bringing it about. और जो दूसरा जो भाग है कि उसका अर्थ को जो है पकड़कर जो है उसको लाना। And he mentioned 3 things. उसने 3 चीजों को बताया है। First of all, the dream. पहला है सपना। He said, God has given me the dream. उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे सपना को दिया है। Then he asked in his book, और उसने अपनी किताब में पूछा है to all the Christian leaders, सब ईसाई अगुवाओं को, you feel the dream you have received is given by God. क्या आपको लगता है कि जो सपना आपने पाया है वो परमेश्वर ने आपको दिया है? But have you shared with
it with others. लेकिन ये जो है दूसरों के साथ भी बांटिए। He said, I shared with my wife, उसने कहा कि मैंने ये अपनी पत्नी के साथ बांटा, but my wife is a very soft-spoken lady. लेकिन मेरा जो पत्नी जो है बहुत ही धीरे से बात करने वाली स्त्री है। She did not agree with the project, वो प्रोजेक्ट के साथ सहमत नहीं हुई, but she was not very, very aggressive. लेकिन वो मतलब बहुत ही एग्रेसिव भी नहीं थी। So I went ahead. लेकिन इसी कारण से मैं आगे बढ़ा। So is the dream that you have received, is it from God? Have you shared it with others? जो सपना आपने पाया है परमेश्वर की ओर से, क्या वो सपने को दूसरे के साथ आपने बांटा है? And secondly, the method to realize the dream. और दूसरा जो है वो सपने को समझने के लिए जो है तरीका, Is it according to the word of God? क्या वो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है? Are we clear that whatever method that we are employing, whatever method we are using, that method is also a godly method? हम लोग क्या वो तरीका जो हम लोग अपना रहे हैं, क्या वो तरीका जो है ईश्वरीय तरीका है, परमेश्वर के वचन के मुताबिक है? And third thing, he says the timing. और तीसरा वो कहता है वो समय। It may be God's dream, हाँ, वो परमेश्वर का सपना हो सकता है, and maybe the method is also God's. और तरीका भी परमेश्वर की ओर से हो सकता है। But is the timing God's? क्या समय परमेश्वर के मुताबिक है? He said we need to be very careful. उसने कहा कि हमें बहुत ही सावधान होना चाहिए। And recently you might have read in the news. अगर maybe about 10 years back, शायद आपने शायद हाल ही में जाए न्यूज़ में वो देखा होगा या पढ़ा होगा 10 साल पहले, a very famous pastor in Singapore. और एक बहुत ही प्रख्यात पास्टर जो सिंगापुर में थे, I've also been to his church वो मैं भी उनके चर्च में गया हूँ। with a very good motive. उनका जो सोच बहुत ही अच्छा था। He used the church funds to support his wife's singing career. वो अपने पत्नी का जो गाने का करियर में सपोर्ट करने के लिए कलीसिया का पैसा को इस्तेमाल किया, with the objective of bringing more new believers, unbelievers into the church. उस उद्देश्य से कि वो कलीसिया में और ज्यादा विश्वासियों को ला सके। But again, whatever he was doing was not according to the word of God. It was not in line with the scriptures. He was not sharing with the right people. लेकिन जो कुछ वो कर रहे थे परमेश्वर के वचन के मुताबिक नहीं था, परमेश्वर के वचन के साथ मेल नहीं खाता था, वो चीज उसने दूसरों के साथ नहीं बांटा। He was arrested by the authorities. वो अधिकारियों के द्वारा उसको पकड़ा गया, He was put 2 years in jail. उसको 2 साल के लिए जेल में डाला गया। Now he is back. अभी वो वापस आ गए हैं, But for 10 years he was out of ministry. लेकिन 10 साल तक वो सेवकाई से बाहर है। A wonderful man of God. परमेश्वर का बहुत ही अद्भुत दास। But finances and money matters, my brothers and sisters, लेकिन मेरे भाई और बहनों, जो रुपया पैसा है, जो आर्थिक चीजें हैं, is a challenge that all of us face. लेकिन वो एक चुनौती है जो हम में से हर एक जो है उसका सामना करना पड़ सकता है। And if we are faithful in small amount of funds, अगर आप थोड़े से रुपए पैसे में भी अगर आप ईमानदार है, विश्वास योग्य है, we are going to be faithful when God gives us more. हम लोग तब भी विश्वास योग्य होंगे जब परमेश्वर हमें ज्यादा देगी। Thank God for the leadership here, Apostle and our elder Gordon. They have devoted a lot of energy towards setting the finances right in every church. और जैसे कि हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हमारे अपोस्तल के लिए, हमारे एल्डर गॉर्डन के लिए, कि उन लोगों ने बहुत सारे मेहनत की है कि कलीसिया में जो है रुपया पैसा को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, सही तरीका से बनाने के लिए। We need to handle money like a duck handles water. और हमें रुपये पैसे को उस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह से हांस जो है पानी के साथ काम करता है, उसी तरह से हमें रुपये पैसे के साथ काम करना चाहिए। Water is a duck's home. पानी जो है हांस का, बतख का घर है। But if you pour water on a duck's back, the water will flow. It will not enter into the body of the duck. अगर आप बतख के शरीर पर पानी डाल देते हैं तो वो पानी जो बतख के शरीर के अंदर नहीं घुसेगा, वो बाहर गिर जाएगा। That is to be our relationship with money also. उसी तरह से हमारा संबंध जो है रुपये पैसे के साथ होना चाहिए। Quickly, I want to go to my third point. मैं तीसरा पॉइंट में जाना चाहता हूँ। Cultivate a broken heart. जो टूटे हुए हृदय को जो है बनाना। Cultivate a broken heart. टूटे हुए हृदय को, चूर्ण हृदय को जो है बनाना। I love to listen to songs, and many times God has spoken to me through songs, through hymns. और मैं वो गानों को पसंद करता हूँ जो परमेश्वर ने बहुत सारे बार जो है वो गानों के द्वारा, भजनों के द्वारा मेरे साथ बात की है। There is one very famous song sung by Hillsongs, written by Brooke Fraser, which says, "Break my heart for what breaks yours. Everything I am
for your kingdom's cause. और यहाँ पर हिलसोंग के जो है वहाँ के एक ब्रुक फ्रेजर जो गायक ने गाया यहाँ पर बोला है कि जो चीज़ से आपका हृदय को तोड़ती है उसी तरीके से मेरे हृदय को भी तोड़िए. We need to be broken for those things for which God's heart is broken. और हमें उस चीज़ से तोड़ना चाहिए जो चीज़ परमेश्वर के हृदय को तोड़ती है. We are not talking about sin again here, हम लोग पाप के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, but we are talking about, say, our attitude towards the Word of God. और हम लोग परमेश्वर के वचन के प्रति हमारा रवैया जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं. In the book of Isaiah in chapter 66 and verse 2, यशायाह की किताब 66 का 2 में God says, all these things my hand has made. When he says, God has made the heavens and the earth. And so all these things came to be, declares the Lord. But this is the one to whom I will look. He who is humble and contrite in spirit and trembles at my word. यहाँ पर कहती है यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, सो ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो. Do we tremble at the word of God, brothers and sisters? भाइयों और बहनों, क्या हम लोग परमेश्वर के वचन के प्रति थरथराते हैं? When we prepare a Sunday sermon, जब हम लोग रविवार के शिक्षा को तैयार करते हैं, do we tremble at what the word of God says? कि जो कुछ परमेश्वर का वचन बोलते हैं उसको सुनकर के हम लोग थरथराते हैं. Come to think of it, it is the word that comes from the maker of heaven and earth. ये सोचिए कि ये वचन जो है परमेश्वर और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता से आया है. That word has the power to save a sinner from hell. और ये वचन में वो सामर्थ्य है एक पापी को नरक से बचाने के लिए, And from the path to hell to take him to the path to heaven. और नरक का मार्ग से उठाकर उसको स्वर्ग की रास्ते पर ले जाना. That word has the power to mend broken families. और वो वचन वो सामर्थ्य टूटा हुआ परिवार को फिर से जोड़ने के लिए. That word has the power to bring back a prodigal son or a prodigal daughter. और उड़ाऊ पुत्र या उड़ाऊ पुत्रियों को फिर से वापस लाने के लिए वो वचन में सामर्थ्य है. The word of God is powerful. परमेश्वर का वचन सामर्थ्य से भरा हुआ है. Paul says, I am not ashamed of the gospel. तो पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, For it is the power of God for salvation क्योंकि ये उद्धार के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है to him who believes. जो उसके लिए जो विश्वास करता है. When we speak the word of God, जब हम लोग परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, when we read the word of God, जब हम लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, when we meditate on the word of जब हम God, लोग परमेश्वर के वचन में ध्यान देते हैं, we are in touch with high tension power. हम लोग जो है बहुत ही शक्तिशाली शक्ति के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं. The last few months I was agonizing before God. और मैं कुछ महीने तक परमेश्वर के आगे में वो व्याकुल था. I was asking God, do people really change when they come to church? मैं परमेश्वर से पूछ रहा था क्या सच में लोग परिवर्तन होते हैं जब वो कलीसिया में आते हैं? Is there really a transformation from inside out? क्या सच में अंदर से वो परिवर्तन हो रहा है? Is it just a change of behavior? क्या ये सिर्फ वो आदतों में ही परिवर्तन है? Is it just a change of what we eat and what we drink? या क्या सिर्फ उसी चीज में परिवर्तन है जो हम खाते हैं या पीते हैं उसी चीज में परिवर्तन है? Or is there an inside out transformation? या सच में अंदर से है बाहर तक परिवर्तन हो रहा है? And God assured my heart that when you speak the word of God, when you teach the word of God, when you teach it sincerely, God does his work. और परमेश्वर ने मुझे अपने दिन दिखाया कि हम लोग जब ईमानदारी से परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं, परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं, परमेश्वर का वचन जो है परिवर्तन को लाता है. Paul says, the Spirit of God who raised Christ from the dead पौलुस कहता है कि परमेश्वर का आत्मा जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिला उठाया is at work in our mortal bodies. और वही चीज जो हमारे शरीर में भी काम कर रहा है. Our mortal bodies means this eye that likes to look at unholy things. और जैसे कि मरणशील शरीर बोलने का मतलब है कि हमारा आंख जो है अपवित्र चीजों को देखना चाहता है. The power that raised Christ from the dead will give life to our mortal eyes. और वही आत्मा जिसने मरे जो मसीह को जिला उठाया हमारे आंखों को भी सामर्थ्य देगा. That will resist from looking at ungodly things. ताकि हम लोग जो है जो अपवित्र चीजों को नहीं देखेंगे. The transformation can take place परिवर्तन हो सकता है when you faithfully speak, teach, preach the word of God. जब आप परमेश्वर का वचन को जो है विश्वास योग्य तरीके से सिखाते हैं, प्रचार करते हैं और बोलते हैं. And then our heart gets broken for the word,
one for the word of God and then for the work of God. और हमारा हृदय टूटता है एक परमेश्वर के वचन के लिए और एक परमेश्वर के कामों के लिए। We know the story of Nehemiah. हमें नेहमाया का कहानी पता है। He was in the king's palace वो परमेश्वर के राजा के दरबार में था वो and living a quite comfortable life. वो एक आरामदायी जीवन जी रहा था, But he was in exile. लेकिन वो बंदी में था, प्रवास में था। And when he heard that Jerusalem, जब उसने यरूशलेम के बारे में सुना that the walls were broken, कि उसका दीवार जो है टूटा हुआ है, he said in the book of Nehemiah, उसने नेहमाया की किताब में कहा है, he said, as soon as I heard these words, उसने कहा कि जब मैंने इस वचनों को सुना I sat down and wept and mourned for many days. और मैं वहां बैठकर मैं रोया और शोक मनाया बहुत दिनों के लिए। I continued fasting and praying before the God of heaven. और स्वर्ग के परमेश्वर के आगे मैंने प्रार्थना की, उपवास की। Is our heart broken when we see the brokenness of lives around us? और जब क्या हमारा हृदय टूटता है जब हम लोग बहुत सारे टूटे हुए जीवनों को देखते हैं हमारे चारों ओर? When we hear the news of, our big cities which are actually overcome by drugs, when we look at drug addicts, news comes to us almost every day. और जैसे कि हम लोग बहुत सारे खबरों को सुनते हैं कि हमारे बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे ड्रग्स के बारे में, लागू पदार्थों के बारे में, When we hear of injustice, जब हम लोग न्याय के बारे में सुनते हैं, does our heart break? क्या वो चीज़ हमारे हृदय को तोड़ती है? When we hear of news of men of God falling, जब हम लोग परमेश्वर का दास गिरते हुए खबरों को सुनते हैं, the last few years, I could not even imagine that almost every month, a tall leader would hear the news that he is no more in the ministry. He has left his wife. He's divorced his wife. So, there are many such stories which come from all over the world. It's almost on a monthly basis. और मैंने खबर को सुना कि कुछ बीते हुए समय पहले कि एक परमेश्वर का दास जो है वो सेवका में नहीं, उसने अपनी पत्नी को जो है जो तलाक दे दिया है। ऐसे खबर जो है हम लोग महीने दर महीने हम लोग सुनते रहते हैं। Again, a very famous singer, Leland. Maybe some of the young generation they know this song as this singer and songwriter. और जैसे कि एक लीलन है, बहुत सारे जवानों को पता होगा ये गायक। He wrote one song by the name "Tears of the Saints." उसने एक गाना लिखा कि धर्मी जनों का आंसू के बारे में। He said there are many prodigal sons on our city streets. और उसने लिखा कि हमारे शहरों के नगरों में बहुत सारे ऐसे उड़ाऊ पुत्र हैं। They run searching for shelter. वो जो वासस्थान के खोजी में है। There are homes broken down. उन लोगों के घर टूटे हुए हैं। People's hopes are fallen to the ground. वो लोगों का जो आशा जो है बिखरा हुआ है From failures. जो असफलता से। This is an emergency. ये आपातकालीन है। There are schools full of hatred. जो स्कूल जो है जो नफरत से भरा हुआ है। Even churches have forsaken love and mercy. कलीसिया ने भी जो है दया और प्रेम को छोड़ दिया है, त्याग दिया है। There are tears from the saints. जो धर्मी जनों का जो आंसू है For the lost and unsaved. जो उन लोगों के लिए जो खोए हुए हैं, जो उद्धार नहीं पाए हुए हैं। We are crying for them, come back home. और वो लोग घर में वापस आने के लिए हम लोग पुकार रहे हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। In another song he wrote, we'll follow you to the homes of the broken. We'll follow Jesus to the homes of the broken. और उसने लिखा है दूसरे गाने में कि हम आपके पीछे चलेंगे उनके घरों में जिनका घर टूटा हुआ है। The tears of the saints are very precious to God. परमेश्वर के लिए धर्मी जनों का आंसू बहुत ही महत्वपूर्ण है। Yesterday apostle spoke about the prayer of Evan Roberts. और कल अपोस्तल ने जो इवान रॉबर्ट्स का प्रार्थना के बारे में कहा था। With brokenness and tears he cried out to God, bend me, bend me, bend me, Lord. और उसने रोते हुए परमेश्वर से प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे झुकाइए, प्रभु मुझे झुकाइए। We need a broken heart. हमें टूटा हुआ हृदय की जरूरत है। I'm not talking about broken heart because of, relationships not being successful. और मैं उस टूटे हुए हृदय के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि वो हृदय जो टूटा हुआ संबंध के कारण टूटा हुआ है। But I'm talking about a broken heart because of some righteous reason. लेकिन मैं उस टूटे हुए हृदय के बारे में बोल रहा हूँ जो धर्मी कारण से टूटा हुआ है। We need to be broken. हमें टूटा हुआ होना चाहिए। To look at our personal life. हमें अपना जीवन, व्यक्तिगत जीवन को देखने के लिए, to give attention to our personal life, हमारे व्यक्तिगत जीवन को ध्यान देने के लिए we need to be broken. हमें टूटा हुआ होना We चाहिए। remember the life of Jacob. हम लोग याकूब के जीवन को देखते हैं। Jacob was a deceiver, याकूब जो धोखा देने वाला था, a supplanter.
जो दूसरे की जगह को हत्याने वाला। He's the type of person who says, I know what I want and I will get it by any means. और वो इस तरह का व्यक्ति था, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए और उसको पाने की उसको मैं किसी भी तरह उसको लेके रहूंगा। There was a time when he deceived his father. और एक समय था कि उसने अपने पिता को ही धोखा दिया। When father had become blind, उसका पिता अंधा हो गया था। and when Jacob came to him, और जब याकूब उसके पास आया, pretending to be Esau, his brother, उसका बड़ा भाई ईसो होने का बहाना किया उसने। Isaac reached out towards his hand, towards Jacob's hand, और उसको इसहाक ने उसका हाथ को महसूस किया, and he could feel some hair. उसको कुछ बाल का महसूस हुआ। Yeah, because Jacob's mother had told Jacob that you put on some animal skin on your arm. और याकूब का माँ ने उसको बताया था कि अपने हाथ में जो है कुछ पशुओं का जो चमड़ा को लगाओ। He wanted the blessing of the firstborn. वो जो है पहलौठे का जो आशीष को पाना चाहता था। So when Isaac, half blind, he asked, he said, who are you? जब इसहाक ने पूछा कि तुम कौन हो, जो अंधा था उसने वो देख नहीं सकता, उसने पूछा कि तुम कौन हो? Jacob said, I am Esau, your firstborn. याकूब ने कहा कि मैं ईसो हूँ तुम्हारा पहलौठा। We read that in Genesis chapter 27. हम लोग ये उत्पत्ति का 27 पद में पढ़ते हैं। He lied and said, I am Esau, your firstborn. उसने झूठ बोला, उसने कहा कि मैं ईसो तुम्हारा पहला पुत्र हूँ। A few years later, और कुछ साल बाद God met Jacob. याकूब का मुठभेड़ जो है याकूब परमेश्वर से हुआ। The angel of God wrestled with Jacob at Peniel. और पेनियल में परमेश्वर का स्वर्गदूत जो याकूब से लड़ाई किया। And after having overcome Jacob, और याकूब को जीतने के बाद the angel said, what is your name? याकूब स्वर्गदूत ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? And Jacob at that time was honest. उस समय में याकूब ईमानदार था। He said, I am Jacob. उसने कहा मैं याकूब हूँ, I am the deceiver. मैं धोखा देने वाला हूँ। And then God said, because you are honest. परमेश्वर ने कहा तुम्हारा ईमानदारिता के कारण से। The angel said, your name shall no longer be Jacob, but Israel. लेकिन अब से तुम्हारा नाम जो है याकूब नहीं होगा लेकिन इज़राइल होगा। For you have striven with God and with men and have prevailed. क्योंकि तुमने जो है परमेश्वर और लोगों के साथ, इंसान के साथ झगड़ा करके उनके ऊपर विजय पाया है। You are a prince. तुम एक राजकुमार हो। And the Bible tells us because of that encounter with the angel, और बाइबल कहती है कि वो स्वर्गदूत के साथ मुठभेड़ के कारण Jacob carried a limp for the rest of his life. और वो जो है मतलब लड़खड़ा के चलने लगा उसका जीवन भर। He carried a limp वो लड़खड़ा के चलने लगा for the जीवन rest भर। of his life. वो अपने जीवन भर Wherever he went, जहाँ कहीं भी वो गया, when people asked him, what happened to you, Jacob? और जब लोग पूछते थे कि याकूब क्या हुआ आपको, God met me. परमेश्वर से मेरा मुलाकात हुआ। I learned my lesson. मैंने अपना पाठ को सीख लिया है। From a deceiver, I became a prince. मैं एक धोखा देने वाला से मैं एक राजकुमार बन I गया। will never forget that day. मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा। I carry that limp for the rest of my life. मैं वो लड़खड़ानापन में मेरे जीवन भर लेके चलूंगा। John Wimber was a very famous man of God in the 70s. और 1970 के दशक में जॉन विम्बो जो है परमेश्वर का बहुत ही प्रख्यात दास थे। He was the one who started the vineyard churches. उसी ने था जो कि विन्यार्ड कलीसिया को शुरुआत किया। He had a very famous saying. उसका बहुत ही एक प्रख्यात कहावत है। He said, never trust a leader without a limp. और बिना लड़खड़ानेपन, जो अगुआ के जीवन में लड़खड़ानेपन नहीं है उस अगुए को जो है विश्वास मत करो। Never trust a leader without a limp. बिना जिसके लड़खड़ापन नहीं है उसको कभी भी विश्वास मत करो। My brothers and sisters, do you have a limp? क्या आप मेरे भाई और बहनों क्या आपके पास लड़खड़ानापन है? Is there some area in your life which you thought you was very strong and that area got touched? क्या आपको लगता है कि जहाँ पर आपको लगा था कि कोई आपके जीवन में ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आप बहुत ही मजबूत हो लेकिन उसी क्षेत्र को परमेश्वर ने छुआ है? I'll share a short testimony which I have never shared before. मैं एक गवाही को बांटना चाहता हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं बांटा है। I was doing my masters here in Northeastern Hill University. नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी में मैं अपना मास्टर्स कर रहा था। And at that time I had just come to know the Lord two years back. और कुछ 2 साल ही हुआ था कि मैं उस समय में प्रभु को जाना हुआ। And I used to, think of myself that I am at least better than average student. और मैं अन्य जो औसत विद्यार्थियों से मैं बहुत ही अच्छा हूँ बोल के मैं सोचता था। And because I am now a believer, God will bless me in my studies. और मैं सोचता था कि मैं अभी विश्वासी हूँ तो परमेश्वर मेरे पढ़ाई में आशीष करेंगे। In one of the semesters, और एक सेमेस्टर में
For the first time and the only time in my life, और पहली बार और सिर्फ वही बार था मेरे जीवन में, I failed in one paper. मैं एक पेपर में फेल हुआ. And that failure, normally it is within the department. It is known within the और department. वो सिर्फ डिपार्टमेंट के अंदर ही पता था उसको वो चीज़. But that time when I went to the Northeastern Hill University headquarters, I found my name on a big display board. और जब मैं वो अपने यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बोर्ड में जो है मेरा नाम को मैंने पाया वहाँ पर. F, failed. एफ था वहाँ पर, फेल हुआ था. And my heart broke. और उस समय मेरा हृदय टूटा. I remember I walked back. I was in another church here. और मैं दूसरे कलीसिया में था, मैं फिर से वापस आया. I went straight to the church. मैं सीधा कलीसिया में गया. The church was closed, but they opened the church, and I went there, and I just wept my heart out. और कलीसिया बंद था, उन लोगों ने कलीसिया खोला और मैं वहाँ पर जाके मैं बहुत ही रोया. I was broken. मैं टूटा हुआ था. I thought, God will bless me now. I'm a believer. I've never failed in my life, but this failure has become so public. और मुझे लगा कि मैं अभी विश्वासी हूँ, परमेश्वर मेरे पढ़ाई में आशीष देंगे, लेकिन मैं फेल हो गया हूँ और वो सबको पता चल गया है. I'll never forget that day. मैं वो दिन कभी भी नहीं भूलूंगा. Of course, after that, as is in the university system, I get a second chance, and I did very well, and God's hand has been upon my life. और हाँ, फिर से मैंने दूसरा मौका पाया तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छा किया. परमेश्वर ने सच में आशीष किया मुझे. But I carry that limp today. लेकिन वो लड़खड़ानेपन का वो उसको मैं लेके चल रहा हूँ अभी तक भी. It may be a very small thing for us, but for me, it is a big thing. और हाँ, हमारे लिए वो छोटा चीज हो सकता है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही बड़ा चीज है. What is the limp? What is it that God has dealt with you, which you thought was your strong point, but it showed up that it was your weakest point? और वो क्या चीज है कि जब आपको लगा कि वो आपका सबसे मजबूत भाग है, लेकिन जब परमेश्वर ने उसको छुआ तो वो आपका मजबूत क्षेत्र ही सबसे कमजोर क्षेत्र था. My last point. मेरा अंतिम पॉइंट, To keep attention to our personal life, हमारे जीवन में ध्यान देने के लिए we must pursue joy. हमें जो है आनंद के पीछे लगना We चाहिए. must pursue joy. हमें आनंद के पीछे लगना You चाहिए. know what made Jesus to endure the cross? आपको पता है किस चीज से सहायता की यीशु को जो क्रूस का सामना करने के लिए? That chapter in Hebrew which we just read, it says, we run the race looking to Jesus, who for the joy that was set before him endured the cross. यहाँ पर 12:2 में कहता है, इब्रानियों का 12:2 कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा. It is actually the joy of seeing you and me, the joy of seeing the deliverance and salvation of so many lakhs of people that made Jesus to endure the cross. और जो है आप और जो लाखों करोड़ों लोगों का जो छुटकारे उद्धार का जो आनंद देखने, उस आनंद के कारण से यीशु जो है क्रूस का उस पीड़ा को सह पाए, उसको बर्दाश्त कर पाए. Psalms 100 and verse 2 says, serve the Lord with gladness. और भजन संग्रह Yeah. 100 में कहता है कि प्रभु की जो सेवा जो है आनंद के साथ करो. Come before him with joyful songs. और उसके आगे जो है आनंदपूर्ण गाने के साथ आओ. Brothers and sisters, in ministry, और भाई और बहनों सेवकाई में once we lose the joy of serving God, जब हम लोग परमेश्वर की सेवा करने का आनंद को खो देते हैं, it is like a car which no longer has any lubricant, any oil. और वो उस गाड़ी के समान है जिसमें कोई वो तेल नहीं होता है, उसके समान है. It makes a lot of noise, वो बहुत सारा आवाज को करती a है, lot of smoke, बहुत सारे धुआं निकल आती है, sometimes fire. कभी कभी आग भी पकड़ लेती The है, car does not move. गाड़ी आगे नहीं बढ़ती. It is like that when we lose the joy of serving, the joy of ministry. और वो उसी तरह से जब हम लोग सेवा करने का आनंद जो है, परमेश्वर की सेवा करने का आनंद को खो And देते हैं. therefore we should pursue joy. हमें जो है आनंद की खोज में लगे रहना We चाहिए. should fight for joy. हमें आनंद के लिए लड़ना चाहिए. Our fight should be for joy. हमारा लड़ाई जो है आनंद के लिए होना चाहिए. Believers are our joy. Do you know that? Believers are our joy. विश्वासी हमारा आनंद है, आपको पता है? When he wrote to the Thessalonian Christians, the Apostle Paul in 1 Thessalonians chapter 2 and verses 19 and 20, he says, for what is our hope
or joy or crown of boasting before the Lord Jesus at his coming? Is it not you? For you are our glory and our joy. और पहला थिस्सलुनीकी का 2:19 और 20 में पौलुस कहता है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही ना होंगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। We should fight for having the fellowship of joy when we spend time with our believers. जब हम लोग अपने विश्वासियों के साथ समय बिताते उस समय जो है वो आनंद का संगति के लिए हमें लड़ाई करना चाहिए। Let it not be a time when we just want to just finish the task. और हमें उस समय उस तरह से ना हो कि हम सिर्फ वो काम को ही पूरा करना चाहते हैं। Let us have the attitude, I want to sit some more. और हमारे पास वो रवैया हो कि मैं और कुछ समय रहना चाहता हूँ, I want to spend some more time. मैं और कुछ समय बिताना चाहता हूँ। We need to fight for that joy. हमें वो आनंद के लिए लड़ाई करना चाहिए। Ministry is our joy. सेवकाई हमारा आनंद है, Believers are our joy. विश्वासी हमारे आनंद है, And God is our joy. और परमेश्वर हमारा आनंद है। Psalm 73 says, whom have I in heaven but you? और भजन संग्रह 73 में कहता है कि मेरे पास स्वर्ग में कौन है लेकिन आप ही हो, And there is nothing on earth that I desire besides you. और आपके अलावा पृथ्वी में मैं आपके बाहर किसी को भी नहीं चाहता। My heart and my flesh may fail, मेरा हृदय और मेरा शरीर असफल हो सकता है, but God is the strength of my heart and my portion forever. लेकिन परमेश्वर ही मेरा हृदय का बल है और मेरा भाग है हमेशा के लिए। My flesh may fail. मेरा शरीर असफल हो सकता है, I may have to go through sickness and disease. मैं बीमारी और रोगों से होकर गुजरना पड़ सकता है, My heart may fail. मेरा हृदय असफल हो सकता है, I may have someone close to me who have either passed away, gone away from the Lord. Some kind of mishap might have happened to me personally. और मेरे साथ व्यक्तिगत रूप में जो सबसे नजदीक है शायद वो गुजर सकता है या प्रभु से नजीक हो दूर जा सकता है, कुछ हो सकता है मेरे साथ। My heart, my flesh may fail, but God, you are the strength of my heart. You are my portion और forever. मेरा शरीर और मेरा हृदय असफल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आप ही मेरे हृदय का बल हो और मेरा भाग हमेशा के लिए हो। How do we fight for joy? हम कैसे आप आनंद के लिए लड़े? The Bible says the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर का राज्य जो है खाने या पीने के विषय में नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा में धार्मिकता, आनंद और शांति है। I believe it is a progression. और मैं विश्वास करता हूँ कि आगे बढ़ना है। When we do righteous acts, जब हम लोग धार्मिक काम करते हैं, when we understand righteousness and justification, जब हम लोग धार्मिकता को और न्याय को समझते हैं, we are filled with peace, जब हम लोग आनंद से भरते हैं, which then leads to joy. और वही चीज जो है आनंद में लेके जाता है। Righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में धार्मिकता, शांति और आनंद। Brothers and sisters, we must keep close watch on our lives and on the teaching that we teach. और भाई और बहनों, जो हम अपने जीवन को ध्यान देना चाहिए और उस शिक्षाओं को जो शिक्षा हमें सिखाया जाता है, And in doing that, there's a great reward. और वो करने में बहुत बड़ा पुरस्कार है। The Bible says, बाइबल कहती है persist in this. In 1 Timothy, that verse which we looked at the beginning, 1 Timothy 4:16, persist in this, for by doing so, you will save both yourself and your hearers. 4:16, 1 Timothy. और यहाँ पर पहला तिमोथी का 4:16 में कहता है, इन बातों पर स्थिर रहा, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। The root meaning of save here is deliver, protect, heal, preserve, do well, be made whole. और या उद्धार का मतलब ये है कि सुरक्षा करना, छुटकारा देना, देखभाल करना, रखवाली करना। When we take care of our life and also of the teaching, जब हम अपने जीवन को ध्यान देते और वो शिक्षा जो हम लोग ने पाया उसका भी, we will be delivered, protected, preserved
till the end. और अंत तक जो है हमारा सुरक्षा होगा, हमें छुटकारा दिया जाएगा। And the people whom we serve, they will also be delivered, protected and preserved till the end. और जो लोग हम में सुनते हैं वो भी सुरक्षित होंगे, उनको भी छुटकारा दिया जाएगा। All of us want to have a successful ministry. हम में से हर एक लोग जो है एक सफल सेवकाई को पाना चाहता है। And I think more important than that, we want our ministry to outlast us. That is, when we are gone, the ministry will still be there. और उससे भी बढ़कर जो है हमारा सेवकाई जो है जब हम लोग यहाँ से ये संसार छोड़कर चले जाएंगे तब भी बना रहे, हम लोग वो चाहते हैं। That will happen वो होगा only when we pay attention to our personal lives वो होगा जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान देंगे and we teach the right teaching. और जब हम लोग सही शिक्षा को सिखाएंगे। May God bless you परमेश्वर आपका आशीष करे for His glory. परमेश्वर उनकी महिमा के लिए। Amen. Thank you.